Welcome to Virtual Learning Network. Indian Economics, Session 7, Planning in India. Topics to be covered include Introduction, Role of Planning in Economic Development, India on the Eve of Independence, Evolution of Planning in India, which will include a brief history of planning, role of state as visualized in the planning process, planning in independent India, plans, planning models and their priorities, planning experience in India, achievements and failures of planning in India, achievements of planning, failures of planning, changing perspective of planning. Introduction. The conflict is superficial in nature. There are plenty of ways in which the planning and the market mechanism can be combined to achieve the desired goals of social and economic development. प्लानिंग और मार्केट मैकेनिज्म की जो डिबेट है बहुत पुरानी है. कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली सुपरफिशियल है नेचर में और बहुत सारे तरीके हैं जिससे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है. Role of planning in economic development. A free and unimpeded market system is expected to lead maximizing the national product. This maximum is also optimum from the point of view of efficiency if certain conditions are satisfied in the functioning of an economy. बेसिकली प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. पॉवर्टी और जितनी भी इनइक्वालिटी सी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में वो सब प्लानिंग के थ्रू रिड्यूस की गई, एलिमिनेट की गई. जहां पे कोई भी पब्लिक गुड्स नहीं थे वहां पे पब्लिक गुड्स क्रिएट किए गए जिसमें नेशनल डिफेंस, रोड्स, ब्रिजेस, पॉल्यूशन प्रिवेंशन के मेथड्स आए. कोई एक्सटर्नलिटीज एसोसिएटेड नहीं थी प्रोडक्शन से. प्रोडक्शन जो था वो सब्जेक्ट नहीं था इन द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का. प्लानिंग की जरूरत पड़ी. प्लानिंग ने एश्योर करा मैक्सिमम नेशनल इनकम टाइम के थ्रू. उसने ऑप्टिमाइज करा नेशनल इनकम की कॉम्पोजिशन को, मिनिमाइज करा इनइक्वालिटीज. जो मीन्स उसने एम्प्लॉयड किए प्लानिंग में वो इनडायरेक्ट थे जो कि मॉनेटरी, फिजिकल और कमर्शियल पॉलिसी के थ्रू थे और कई बार डायरेक्ट भी थे पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू. इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. Indian economy at the time of independence was overwhelmingly rural in character with nearly 85% of the population living in villages and deriving their livelihood from the agricultural and related pursuits using traditional low productivity techniques. Indian economy independence के टाइम बहुत ज़्यादा रूरल थी कैरेक्टर में और ऑलमोस्ट 85% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो विलेज में रह रही थी. वो अपनी एग्जिस्टेंस, उनका जो लाइवलीहुड था वो डिपेंड करता था उनकी एग्रीकल्चरल इनकम पर. The backwardness of Indian economy gets reflected in its unbalanced occupational structure with 75% of the working population in agriculture. इंडिपेंडेंस के टाइम ये देखा गया कि 75% जो पॉपुलेशन थी उनकी मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर थी. Evolution of planning in India.
पॉलिसी मेकर्स जो थे इंडिया में, उन्होंने इनिशिएट किया प्लानिंग का प्रोसेस ताकि वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। वो ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का उसको और इम्प्रूव किया जाए, कंट्री को इंडस्ट्रियली एडवांस बनाया जाए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट अचीव किया जाए और जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं इनकम से रिलेटेड उनको दूर किया जाए, पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए। Policy makers in India initiated the process of planning in order to attain certain objectives within a time frame. These were particularly aiming at to speedily raise the levels of living, to catch up with the living standards of the industrial advanced countries, to produce product mix which could sustain growth over a long period of time, reducing the extent of the existing inequalities and the levels of poverty in the country. Brief history of planning. Planning की history start हुई National Planning Committee से. The committee laid down the following recommendations. First one is the state should own or control all key industries and services, mineral resources, railways, waterways, shipping and other public utilities, and all those large-scale industries which were likely to become monopolistic in character. Second, agriculture is crucial to draw up a scheme of national planning. The planning should aim at doubling the standard of living of the people in 10 years. जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बेसिकली मेन आर्किटेक्ट थे प्लानिंग के, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई और उनकी ही चेयरमैनशिप के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट हुई 1938 के एंड में। इस कमेटी ने सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया प्लानिंग के और कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की, जैसे कि जो स्टेट है वो जितनी भी मेन इंडस्ट्रीज होंगी, मिनरल इंडस्ट्रीज जैसे रेलवेज, वाटरवेज, शिपिंग और जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज जो है वो उनको ओन करेंगी और कंट्रोल करेंगी और ये इंडस्ट्रीज बेसिकली मोनोपोलिस्टिक होंगी नेचर में। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए भी कंसिडरेशन किया जाएगा प्लानिंग में। और थर्ड था कि जो प्लानिंग प्रोसेस में 10 इयर्स के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडियन सिटीजन्स का उसको इंप्रूव किया जाएगा डबल। फिर एक गांधीयन प्लान था। गांधीयन प्लान में महात्मा गांधी जो कि एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इनफॉर्मल मॉडल डेवलप किया इकोनॉमिक ग्रोथ का और उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग और इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। उनके जो गांधीयन प्लान था वो उसकी पॉलिसीज प्रिपेयर की थी श्रीमान नारायण ने और आचार्य एस.एन. अग्रवाल ने 1994 में। रोल ऑफ द स्टेट एज विजुअलाइज्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस। In the early 1950s, it was believed that the state could play a significant role in developing economy, both in raising the domestic rate of savings and in putting it to more productive use. This increases land productivity as well as improves the economic conditions of rural poor as they are mainly landless laborers. 1950s में ये माना गया कि जो स्टेट है उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है डेवलपिंग इकोनॉमी में। उसने इकोनॉमी की जो सेविंग रेट है उसको रेस किया है। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ऑब्वियसली पहले रूलर थी कैरेक्टर में। लैंड टेन्योर सिस्टम फॉलो होता था जिसमें एक सब्सटेंशियल पार्ट होता था सरप्लस का, वो कल्टीवेटर्स का और फार्म लेबर्स का, वो अप्रोप्रिएट किया जाता था स्मॉल क्लास ऑफ नॉन कल्टीवेटिंग लैंड ओनर्स को इंटरमीडिएट्स के थ्रू। एबॉलिशन हुआ इन सब जितनी भी एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस यूज हो रही थी। लैंड रिफॉर्म्स क्रिएट किया गया जहां पे लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई, बड़े जो फार्मर्स थे उनसे
लेकर जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर से उनको दी गई, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ी और इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी रूरल पुअर की वो इंप्रूव हुई। लैंड रिफॉर्म्स ने कंबाइन किया टैक्सेशन एग्रीकल्चर का, डायरेक्ट स्टेट का जो इंटरवेंशन था वो जरूरी था और जस्टिफाइड था एक्सटर्नल इकोनॉमीज के थ्रू। प्लानिंग इंडिपेंडेंट इन इंडिया। Planning in independent India, the responsibility for overall planning was vested with the Planning Commission. The Commission's mandate was quite wide to assess the country's needs of material capital and human resources and to formulate plan for their more balanced and exclusive utilization, to view all important programs and projects before they are approved for implementation, to determine the pool of resources to be devoted to development and the allocation of this pool between various users, the monitoring and the evaluation of their progress. प्लानिंग जो प्रोसेस था इंडिया में फॉर्मली स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन सेट किया 1950 में मार्च में। जो पूरी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्लानिंग की वो प्लानिंग कमीशन की थी और कमीशन ने कुछ चीजें कंपलसरी बनाई, जैसे कंट्री ये एक्सेस करना, ये एनालाइज करना कि कंट्री को कितनी जरूरत है मटेरियल कैपिटल की और ह्यूमन रिसोर्स की। सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना एक बार उनकी इंप्लीमेंटेशन से पहले, प्रोग्रेस देखना, उनकी मॉनिटर करना और वैल्यूएशन करना। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था और इश्यूज थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिया में वो ग्रोथ था, मॉडर्नाइजेशन थी इकोनॉमी की, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में बेसिकली था रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। Plans, planning models and their priorities. Three features of this formulation are noteworthy. First, it viewed planning as a means of utilizing available resources more effectively to initiate the development process. It emphasized that elimination of poverty cannot be achieved exclusively through redistribution of existing wealth or through raising output. It recognized that planners are not omniscient, that there are vast gaps in our knowledge of facts and that considerable amount of judgment is inevitable in making policy. जो फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ वो अप्रैल 1951 में हुआ। उसने एक डेवलपमेंट का प्रोसेस इनिशिएट किया, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो लोगों की उससे इंप्रूव हुई। फर्स्ट 5-year प्लान बेसिकली इंडिया में 1951 से स्टार्ट हुआ था और वैद्यनाथन 1995 में उनके अकॉर्डिंग 3 फीचर्स थे फॉर्मुलेशन के। पहला, प्लानिंग को एक इफेक्टिव मीन माना गया, उसको एक तरीका माना गया जिससे जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज्ड किए जा सकते थे। पॉवर्टी एलिमिनेशन था, उसको अचीव किया गया इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन करके। Planning process in India had strong theoretical foundations. All the 5-year plans have been based on different planning models. The first plan 1951-56 was based on Harrod-Domar growth model. The result of this model can be set up in a simple equation: I into 1 divided by alpha is equal to I into alpha. जो प्लानिंग प्रोसेस था इंडिया में वो स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन पे बेस्ड था। जितने भी 5-year प्लान थे वो डिफरेंट प्लानिंग मॉडल्स पे बेस्ड थे। जैसे जो फर्स्ट 5-year प्लान था
1951 से 56 तक, वो बेस्ड था हैरड डॉमर ग्रोथ मॉडल पे। हैरड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, जहाँ पे आई का मतलब है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अल्फा का मतलब है मार्जिनल सेविंग रेट और पाई का मतलब है मार्जिनल आउटपुट कैपिटल रेशियो। स्टैंडर्ड डेविएशन, आई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे है मार्जिनल आउटपुट कैपिटल रेशियो। प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया। While India adopted planning under a strong interventionist state, its approach to planning differed in several crucial respects from that of the socialist, former as well present ones economies. Private property rights in India protected by legal rights against state takeover without compensation. Planning जो process थे इंडिया में, उसमें स्टेट का स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन था। इंडिया में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था वो तो प्राइवेटली ओन था। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स जो थे इंडिया में प्रोटेक्ट किए गए थे लीगल राइट्स के थ्रू। मॉडेस्ट प्रोग्राम क्रिएट किए गए थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए, और स्टेट का कंट्रोल था मेजर इंडस्ट्रीज पे, जो की इंडस्ट्रीज थी जैसे रेलवेज, कोल माइंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। प्लानिंग जो इंडिया में थी उसने बहुत सारे स्ट्रक्चरल ब्रेक्स लेकर आए। प्लानिंग इन इंडिया हैज ब्रॉट मेजर स्ट्रक्चरल breaks, although not to the extent desired by the planners. Planning was viewed as a way of avoiding the unnecessary rigors of an industrial transition insofar as it affected the masses. It had a stable government and educated elite of feasible dimensions, a commitment to planned development and a very low defense spending. Achievements and failures of planning in India. India has completed 5 decades of planning. इंडिया ने अपने 5 decades कंप्लीट कर लिए हैं प्लानिंग के, इसलिए ज़रूरी है कि जो इंटायर पीरियड है उसको रिव्यू किया जाए और जो जितनी भी अकम्पलिशमेंट मिली है प्लानिंग प्रोसेस में, जितनी भी डेफिशिएंसीज हुई हैं उसको समझा जाए, ताकि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसको अचीव किया जा सके। अचीवमेंट्स इन प्लानिंग। Reviewing the performance of 5 decades of planning, it can be said that it is a cause of the legitimate national pride that over this period a stagnant and dependent economy has been modernized and made self-reliant. Moderate rate of growth of per capita income has been maintained and despite the growth of the population. Planning में बहुत सारे achievements थे। बहुत पहले इंडिया एक मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी बनी, सेल्फ रिलायंट हुई, ग्रोथ रेट जो इंडिया का वो इंक्रीज हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सोशल प्रोग्रेस हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी इंडियन पीपल की वो बढ़ी, एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम डेवलप हुआ। Indicators of economic progress. During 1950-51 to 1991-2000, our gross domestic product at factor cost or the GDP FC at constant prices has experienced an average growth rate of 4.1% per annum. Saving as a production of GDP have risen from 10.4% in 1950-51 to 25.6% in 1995-96. Death rate in this period, the population grew at more than 2% per annum and the net consumption grew at a modest rate of 1.4% per annum. The process of industrialization in India has been impressive. Indicators of social progress, life expectancy बढ़ी, जैसे मैंने बताया, एक अच्छा educational system डेवलप हुआ। Failures in planning. From the credit side of the planning, now we turn to the debit side of the account and focus attention on the deficiencies of planning in India.
कुछ फेलियर्स भी हुए प्लानिंग प्रोसेस में, जैसे बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग जो था वो अचीव नहीं हो पाया, इनइक्वालिटीज जो थी इनकम और वेल्थ में वो इतनी रिड्यूस नहीं हो पाई, एम्प्लॉयमेंट हर इंडिविजुअल्स को नहीं प्रोवाइड किया जा सका, और इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ लैंड के लिए, ये सब फेलियर्स थे. This has happened only to a limited extent, and evidence of that is the following: failure to provide a basic minimum level of living to the whole population, failure to reduce inequalities of income and wealth, failure to provide productive employment to all able-bodied persons, inadequate infrastructural availability, neglect of small and marginal farmers, and redistribution of land. Changing perspective of planning. Planning में जो changes आए, सेंट्रल प्लानर है उसने इशू करा डायरेक्शन, प्लानिंग बाय डायरेक्शन जो थी वो इनफ्लेक्सिबल थी, जैसे प्लान प्रोसीड होता था फुलफिलमेंट होती थी, सेंट्रल प्लानर्स जो थे वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल्स देते थे. Now we have certain questions, do it yourself. First is explain evolution of planning in India. Second is what are the achievements and failures of planning in India. That's all for this session. Thank you.